السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اب میں جناب حبیب محمد خان صاحب فہیم سے میں گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور ہم تمام کو مخاطب کریں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد و امتی محمد اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ادارہ اماد ملت کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے یہ 29واں جلسے رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ اس جلسے کو مخاطب کرنے کا مجھے موقع ملا، اس کے لیے میں بانی مدرسہ ادارے اماد ملت حضرت مطیع اللہ ذاکر منوری صاحب قبلہ و فصیح اللہ منوری صاحب قبلہ کا شکر گزار ہوں اور منتظمین کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پر بات کرنے کا موقع دیا۔ سب سے پہلے تو بات کرنے کے لیے ہم تمام یہاں پر موجود ہیں، تمام مقررین کو سننے کے لیے، شعراء اکرام کو سننے کے لیے کچھ آداب کی بھی ضرورت ہوتی ہے، نہ صرف کہ خالی احاطے میں بیٹھا جائے بلکہ توجہ بھی دی جائے۔ میں مقرر تو نہیں ہوں بلکہ آپ تمام کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت سے جو غور کیا ہوں وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں آپ ابھی سنے ہیں۔ ہم تمام کو بچپنے سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جیسی شخصیت امت میں قیامت تک کبھی نہیں آ سکتی۔ ان سے محبت کرنا ہماری والدہ، ہمارے والد، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہمارے چاہیتے چیزوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہمارے جان و مال سے بہتر شخصیت جن کے تعلق سے ہم آج بیان کرنے کو یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ اب جب ہم آئی لو محمد بولے تو کیس بک ہو رہا بول کے جو نیوز پڑھ رہے ہیں تو زبانی طور پہ آئی لو محمد بولنے والے بنے ہوئے ہیں بول کے کیس بک ہو رہا۔ آئی لو محمد دل سے بولو۔ جب کسی کی محبت اگر اپنے دل میں ہے تو ہماری یہ دل کی کوشش رہتی کہ ہم جو جس شخصیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کو تمام طریقے سے اڈاپٹ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تکالیف تھے، جب نماز چھپ چھپ کے پڑھنا پڑتا تھا، جب مدینے میں ہجرت فرمائے آج سے 1447 سال پہلے جب نماز کا اعلان ہوا، عام طور پہ نماز ہونے لگی مسجد نبوی میں، اس کے بعد میں نماز کو اتنی فرضیت ملی کہ بغیر نماز کے کوئی چیز کے عمل کی اہمیت نہیں رہی۔ تو وہ ایک نماز کو آج ہم لائٹ لے لے رہے۔ میں بیزی ہوں، میں دکان میں ہوں، میں جاب پہ ہوں، میں کالج میں ہوں، میں اسکول میں تھا، آج شادی کی تیاری کرنا ہے، میرے کو آج جلسے کی تیاری کرنا ہے، میرے کو آج ادھر کرنا ہے، یہ کرنا ہے، نماز کو بازو۔ پھر آئی لو محمد کہاں ہے؟ رسول اللہ سے سچا عشق رکھنا ہے، ان کے اوپر جان نثار کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسوہ حسنہ، ابھی آپ سنے میرے سابقہ مقرر کی طرف سے، اسوہ حسنہ کے اوپر عمل آوری کہاں ہو رہی؟ ہم نماز کو ایک فرصت ملی تو پڑھ لیں کا قصہ ہو گیا۔ گھر کے اندر تمام اراکین جو خانہ جتنے بھی خاندان والے ہیں نماز کو اگر اہمیت دیے تو بچے بھی نماز کی اہمیت سمجھیں گے۔
बड़े लोग हैं नमाज को इजी ले रहे हैं, आज जरा बुखार है, थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़े घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मैं जा नहीं सकता, मैं परेशान हूं, फला फला बहाने तो 1500 है। हज्जाम के पास वस्त्रों की कमी नहीं, हमारे लोगों के पास बहानों की कमी नहीं। बस नमाज को छोड़ दो, पोस्टपोन कर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ रहे का मतलब हम शिनाख्ती कार्ड में, आधार कार्ड में, सर्टिफिकेट में, डॉक्यूमेंट्स में मुस्लिम है, मगर अल्लाह की नजर में अमलन काफिर है। अब ये मैं कठोर बात दिख रही मैं बोल रहा हूं, तो कोई नहीं बोला आज तक ऐसा बोल दे रहे हैं बोल के, आप तलाश कर लो। अगर झूठ बोल रहा हूं तो आप कोई मेरे को बोल सकते हैं, मैं अपनी माजरत खाई रख देता हूं। मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। सहाबा इकराम इतना जद्दोजहद करते थे, अगर बीमार भी हुए 2 साथियों के साथ मस्जिद में आते थे ताकि लोग ये ना समझे कि वो मुनाफिक है, तो नमाज की उतनी अहमियत रखते थे। आज नमाज कहां है? आई लव मोहम्मद जलसे में चले जाएंगे, बैनर उठा लेंगे, नारे मार लेंगे, रसूलुल्लाह की नियाज कर लेके खाएंगे। रसूलुल्लाह के बताए हुए चीजों पे अमल कहां हो रहा? रसूलुल्लाह फरमाए इल्म का हासिल करना फर्ज है, और खाली बच्चों को सिखा दे रहे 40 अहादीस में, बच्चे रट ले रहे इल्म का हासिल करना मर्द और औरत पर फर्ज है बोल। अब उसके बाद में जब इल्म हासिल हो गया, नमाज दीन का सुतून बोल के बोले, वो सुतून कहां है? रुई का बना हुआ है, ढेर हो गई बिल्डिंग, मजबूती से उसको रखेंगे तो ईमान कायम रहेगा। अब इल्म हासिल करना बोले तो सारी जिंदगी तो नौकरी में, पेशे में, कुछ ना कुछ काम करने में गुजर जा रही, रिटायरमेंट की उम्र आते के साथ ही तारे के दुनिया खत्म, पूरे गुनाह धुले गए वैसा। अब अगर उनको इल्म आता नहीं आता कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उम्र के पड़े रहते, और उन लोगों को भी शर्म झिझक रहती कि मैं कैसा हासिल करूं, जबकि रसूलुल्लाह का फरमान है इल्म हासिल करो झोले से खबर तक, तो मरे दम तक के आपको इल्म हासिल करना है, ये फर्ज है। खाली अगर हदीस सिखा दिए बच्चों को, रटे रटाए बच्चे सीख लिए, तो वह आधी अधूरी बात ही समझ में आती। इल्म का हासिल करना मर्द और औरत पर फर्ज है बोल दिया, खत्म, चलो इतना सीख गए। अब इल्म कौन सा हासिल करना है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इल्म सिखाए वो हासिल करना है, जो दीन की पुख्तगी अता करता वो इल्म सीखना है। सोबत सादिकीन जो हमारे माशरे में है उसको अडॉप्ट करना है। जरूरत पड़ने पर मुर्शिद मियाँ आप जरा मेरे को पढ़ के फूक दीजिए, मेरे को तकलीफ है, मेरे को दुख है, मेरे को परेशानी है, मेरी दुकान नहीं चली, इफ्तिताह कर दीजिए, इसके वास्ते मियाँ मौजूद है, बाकी के दूसरे चीजों के लिए नहीं। आप मियाँ से इस्तेफादा हासिल नहीं कर रहे, इल्म हासिल नहीं कर रहे, मियाँ की सोबत इख्तियार करके आप मियाँ जैसा 5 वक्त नमाजी है, लोगों को साथ इस्लाह करने की दावत देते, आप कहां कर रहे? आपके लिए जरूरत है तो रुखा लाके दे दे रहे, मियाँ आ जाइए अल्लाह दिया, खत्म, उसके वास्ते मियाँ को यूज कर रहे, तो इल्म कहां पर रहेगा? हमारे लोगों में सब्र नहीं है, हमारे लोगों में इस्तिकामत नहीं है। दीन की इस्तिकामत रखेंगे तो सब चीज होगा। नमाज पढ़ने के वास्ते नमाज फर्ज है, नमाज फर्ज है। काफिर और मुसलमान में फर्क तो सिर्फ नमाज है। नमाज कैसा अदा कर रहे हैं देखो, नमाज में क्या पढ़ रहे हैं वो भी नहीं मालूम, चुड़ी चोंच मारी वैसे सीधा मार रहे। अब उनको कौन सिखाएगा? उम्र में बड़े हैं भाई बोलते, दूसरे बच्चे भी कोई नहीं बोलते कुछ भी। नमाज पढ़ते के साथ ही जैसा पेशानी लगाए तो चुरका लग रहा वैसा सीधा उठ जाता। दोनों सज्जों के बीच में क्या पढ़ना नहीं मालूम, कायदे में क्या पढ़ना नहीं मालूम, सलाम फेर रही, खत्म, चलो उठे भाग गए। पहली सब में घुस घुस के पढ़ते, फिर उसके बाद में निकल के ऐसे सांप के ऐसा रास्ता बना के बाहर भाग जाते। अरे नमाज पढ़ रहे, कम से कम नमाज के बाद दुआ तो करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी तालीमात दिए, कम से कम एक बार आप आयतल कुर्सी पढ़ो, 3 बार इस्तग़फ़ार पढ़ो, कुछ ना कुछ तो पढ़ो। नमाज
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद ही करे, बेशक नमाज बुराइयों से रोकती है बोले, तो अब कब रोकेंगी? नमाज अगर सही होंगी तो उसका असर होगा। डॉक्टर बोल दिया ये 3 टाइम खा लो इंशाल्लाह बुखार कम हो जाएगा, बीमारी दूर होगी बोलता, तो अब दवा नहीं खाएंगे, तापदान में लग जाके रखेंगे, 3 टाइम के बजाय 4 टाइम खाएंगे बोल के सोचेंगे 2 टाइम करेंगे बोले तो नहीं होगा। तो मैं आप तमाम से ये अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि घर के अंदर माहौल ऐसा बनाइए कि कम से कम बड़े लोग वक्त पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें ताकि बच्चों को भी सीख मिले। अब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर बयान करते बैठे तो सुबह हो जाती। तारीफ जितनी करें रसूलुल्लाह की, उसवा हसना की, हम कम है, मगर हमारे को सिर्फ आज के दौर में यह देखना है कि खाली जबानी आई लव मोहम्मद बोले तो नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे उनके अमल करने के वास्ते कोशिश करना, जद्दोजहद करना, उसके लिए इल्म हासिल करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलते थे, सच बोलो, ये तो करने की चीज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिखाए जो अपने लिए बेहतर समझो दूसरों के लिए भी वही चाहो। कहां हो रहा? अपने वास्ते सब चीज फायदा, दूसरों के वास्ते जान दे भाई बोल रहे। तो ये चंद चीजें जो दुनिया में रोजमर्रा की अपन अडॉप्ट कर सकते, कोई मुश्किल बात नहीं बोल रहा हूं मैं। इंशाअल्लाह ताला और वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह, अगर आप लोगों के साथ तो और बयान करने की कोशिश करूंगा। और आप तमाम से ये गुजारिश करते हुए अपनी जगह लेता हूं कि नमाज को कायम कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगे, आप शिर्क से बच जाएंगे। अल्लाह ताला को जो नापसंदीदा चीज है वो शिर्क है, वो शिर्क से आप बच जाते, अल्लाह के सामने श्रद्धा कर रहे, तमाम बुराइयों से बच जाते। तो इंशाअल्लाह ताला आप तमाम से इजाजत लेता हूं। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।